Very good morning, everyone. In our previous class, we have studied about the parts of the plant, and in that, we have studied about the stem. Okay, we have also studied activity related to stem. So, today we will learn the importance of stem in plants. Okay, so uh, as we have already discussed that stem acts as the pipeline of the plant. It helps in upward movement of water and minerals which we provide to the plants. It जो stem होता है, it provides that waters and minerals to rest of the parts of the plant like leaves, flowers and buds. Okay, other than that, it helps in the growth of the plant in a way that it act as a it plays a very vital role, very important role in transportation of waters and minerals to from the roots to other parts of the plant. Okay, now for example, we have the bark of cinchona tree which provide us a medicine. ठीक है, so the stem of certain plants have medicinal value also. ठीक है, the malaria, which is a very serious disease, you can say. It is caused due to the bite of an female Anopheles mosquito. So the bark of cinchona tree, the name of the tree is cinchona. The bark of cinchona tree is used for making the medicines of making the medicine of this disease called malaria. ठीक है, the medicine is known as quinine and it is made from the bark of cinchona tree. So this is an example in the way how we can use stems of the plant in our day-to-day life. Other than that, some stems of plants such as potato, onion, ginger, sugarcane, garlic, they provide us food. जो इन प्लांट्स का एडिबल पार्ट होता है वो स्टेम होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पोटैटो, वी हैव अनियन. जो इसमें हम जो चीज़ खाते हैं, दैट एडिबल पार्ट इज nothing but it is the stem of the plant. And the stem of some plants provide us fibers such as jute fibers which are obtained from jute plant. Jute भी एक तरह का plant होता है. Okay, and it let me show you if I can. So this is the jute plant. ठीक है, the stem of the jute plant is used for मेकिंग ऑफ जूट फाइबर्स. जूट का हम लोग बैग यूज़ करते हैं, रैग्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ देम दैट इज मेड फ्रॉम दिस जूट प्लांट. और ये जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. तो जो इसका स्टेम है, लाइक यू कैन सी, जो बहुत आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, दैट इज द स्टेम पार्ट ऑफ दिस जूट प्लांट विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वेरियस अदर थिंग्स. ओके, stem of certain plants like timber, these are used for making the furniture. हमारे घर के जो furnitures होते हैं, ये बहुत सारे furnitures like table, wood and many other things are made from the stem parts of certain plants like timber is one such plant. ठीक है, now moving on to the next important part of the plant, that is leaf. The green part of the plant which you see is known as the leaf. ठीक है, observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. All the leaves of same size, shape and color. हम अपने आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं जिनमें जितनी भी लीव्स होती हैं, देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट colors also. Some are light green in color, some are very dark green in color, and some of you might have seen the leaves which are in reddish color. Okay, let me show you. So as in the picture you can see their leaves are of different shapes. In the middle of the picture you can see the leaf is of heart shape, and the leaves are of different shapes and sizes. The leaves, some certain leaves are of heart shape, कुछ आपको ऐसे zigzag shape के दिख रहे हैं. ठीक है, तो leaves are of different colors and shapes. So these were the leaves which were green in color. Now we will see some leaves which are reddish in color.
नाउ हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। हमने जब स्टेम को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो भी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, उस जैसे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, दे आर ऑल अटैच्ड टू द स्टेम. So how this leaf is attached to the stem, this we will study now. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called as petole. वो पार्ट लीव का जो स्टेम से अटैच होता है उसको हम लोग पेटोले बोलते हैं, जहाँ से आप एक तरह से कह सकते हो लीफ की बिगनिंग होती है, उस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पेटोले. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड एज लैमिना. जो ग्रीन कलर का आप सरफेस देखते हो, जो दैट ग्रीन पार्ट ऑफ दैट plant is known as lamina. Okay, let me show you. In this picture you can see that जहाँ जो वो पतली सी आपको स्टिक टाइप की दिख रही है, दैट पार्ट इज पेटोले. और वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जिसपे आपको हल्की हल्की लाइंस दिख रही हैं, दैट ग्रीन पार्ट इज नोन एज लैमिना. Okay, now can you identify these parts of leaves in plants around you? क्या हम अपने आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये दोनों पार्ट्स दैट इज पेटोले एंड लैमिना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या सारे लीव्स पे पेटोल्स होते हैं? क्या जितने भी लीव्स हमारे आसपास है सब में पेटोल्स होते हैं? तो वी विल स्टडी दिस बाय एन एक्टिविटी. लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. हम एक इम्प्रेशन मतलब होती है छाप या कार्बन कॉपी या कॉपी आप जिसको कह सकते हो. इम्प्रेशन मीन्स छाप या कॉपी. तो हम लीव को और बेटर तरीके से समझेंगे बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, here is an activity which will make you think again. Okay, now for this activity, put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. आपको एक लीफ पत्ता तोड़ना है और उसको एक वाइट शीट के अंदर रखना है या फिर अपनी कॉपी के अंदर रख देना है. सिंपली होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन दी फिगर. जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, लीफ के ऊपर आपको एक पेज रखना है. होल्ड योर पेंसिल साइड tip sidewards and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. पहले आपको क्या करना है, एक लीफ को लेना है, उसके ऊपर आप एक पेपर रख दो या अपनी नोटबुक में लीफ को डालो और उसको एक पेपर से कवर कर दो. ठीक है, जैसे हम लोग शेडिंग करते हैं ना अपनी पेंसिल को टेढ़ा करके, फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली रब दैट लीफ. जो पेपर है उस पर आपको जो लीफ की इंप्रेशन दिख रही है उसको सिंपली रब कर देना है. डिड यू गेट द इंप्रेशन विद सम लाइंस ऑन इट? जो हमें पेपर पे है, जब हम उसको रब करेंगे पेंसिल से और नीचे लीफ को रखेंगे तो हमें वहाँ उस पेपर पे कुछ लाइंस दिखाई देंगी, इंप्रेशंस दिखाई देंगी. आर दे सिमिलर टू दोज ऑन दी लीव? क्या वो जो लाइंस हमें दिख रही हैं वो लीव्स पे बनी हुई लाइंस के बराबर है? मैंने आपको इससे पहले वेन्स के बारे में बताया था. जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं वैसे लीव्स पे आपको छोटी छोटी लाइंस दिखेंगी. ठीक है, वो दैट लाइंस आर नोन एज वेन्स ऑफ द लीफ. ठीक, तो जो आप इसको पेपर के ऊपर एक लीफ को रखोगे और जब ये इंप्रेशन बनाओगे तो आपको वो वेन्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी. दीज लाइंस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड एज वेन्स. तो जो ये पतली पतली, कुछ लीव्स में आपको पतली वेन्स दिखेंगी, कुछ लीव्स में आपको थोड़ी सी थिकर वेन्स दिखेंगी, तो दैट लाइंस आर नोन एज वेन्स. डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिडरिब. जो बीच आपको एक सेंटर में से एक थोड़ी सी थिक लाइन दिखेगी, उसके किनारे किनारे आपको छोटी छोटी वेन्स दिखेंगी. हम लोग यूजुअली जब लीफ को ड्रॉ भी करते थे तो बीच में एक लाइन बनाते थे, उसके किनारे में छोटी छोटी लाइंस को बनाते थे. तो जो बीच वाली लाइन होती है उसको मिड रिब बोलते हैं. मिड मतलब बीच में और रिब, वहीं से हमने ये वर्ड आया है मिड रिब. ठीक है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ ऑफ द
made by the veins in the leaf is called as leaf venation. जो वो वेन्स के जो थ्रू जो लाइंस मिलती हैं उस पूरे को हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपको मिडरिप के किनारे किनारे छोटी छोटी वेन्स दिखाई देंगी, दैट इज नोन एज लीफ वेनेशन। ओके, लेट अस सी इट फर्दर। Now, if this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate, which means कि जो जो मिडरिप के दोनों तरफ जो डिज़ाइन है वो अगर साइड साइड की दिख रही है आपको, मतलब नेट लाइक जैसे जिस तरह से इस तरफ है या उस दोनों एक सिमेट्री बनाते हुए दिख रही हैं, देन दैट पार्ट इज नोन एज रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। हमने पैरेलल लाइंस के बारे में मैथ्स में पढ़ा है, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, सीधी सीधी दिखाई देती हैं। तो अगर जिन प्लांट्स की लीव्स में वो पैरेलल लाइंस वेन्स में हमें दिखाई दें, दैट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और जिसमें नेट लाइक साइड साइड में दिखाई दें, दैट इज नोन एज रेटिकुलेट। और जो जिसमें सीधी दिखाई दे वेन्स हमें एक दूसरे के पैरेलल, दैट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। ओके, इसको भी हम फर्दर देखते हैं। Now, observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. आपको क्या करना है, to get the better understanding, जो भी हमने लीव के बारे में पढ़ा है, दैट इज पिटोले क्या होता है, लैमिना क्या होता है, वेन्स क्या होती हैं, मिडरिप क्या होता है, ठीक है। तो आप जो भी अपने आसपास के जो लीव्स हैं उनको ऑब्जर्व करो कि किस लीव में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है, किस लीव में आपको पैरेलल वेनेशन मिल रहा है, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो कंसिडर दिस एज योर होमवर्क। आपको रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं, जो लाइंस होती हैं लीफ में प्रेजेंट होती हैं, वो एक नेटवर्क बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन में जो भी वेन्स या लाइंस होती हैं वो एक सीधा सीधा लंबी सी दिखती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कोई नेटवर्क फॉर्म नहीं करती। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द लीव, ठीक है, उसमें कैसा वेनेशन फॉर्म हो रहा है। अगर पैरेलल हो रहा है तो पैरेलल के एग्जाम्पल में आप लिखोगे, रेटिकुलेट हो रहा है तो रेटिकुलेट के एग्जाम्पल में लिखोगे, एंड दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन एंड कंसिडर दिस एज योर होमवर्क, ठीक है। तो आपको दो एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रेटिकुलेट के और पैरेलल के लिखने हैं। ओके, shall we now find out some of the functions of the leaf? तो function of the leaves we will study in our next class. Thank you everyone.